So far, the biggest arrest that's been made in this case. CBI has arrested Manish Sisodia after 8 hours of questioning to him today. No, he was supposed to be arrested. Reason being, he's the main kingpin of this scam. This all liquor scam, liquor gate. He's the one who has made this policy, who has drafted this policy, and the policy was drafted and enacted on the behalf of few liquor dons. And he was the one who increased a commission from 2% to 12% and receiving kickbacks of 6%. And this was told by none other than his close-eyed Mr. Dinesh Arora, who is now a government witness, who is a prosecution witness now. So there is nothing new. He has to be arrested today or tomorrow. And so the CBI has arrested him. The Aam Aadmi Party, Mr. Sirsa, interestingly, all through today was already anticipating this arrest. They were saying that highly placed sources have told them that he's going to be arrested soon, and that's what's happened. But of the information that's coming to light, we're being told that witnesses have been questioned, and on basis of those statements is why this arrest has taken place, which includes, by the way, the statement of the Delhi Deputy Chief Minister's private secretary as well, C. Arvind. So very true, but obviously why they were anticipating it, because they knew that he is the one who's the main accused. He is the one who has drafted this policy. He is the one who took under-table 6% commission. So Aam Aadmi Party was well aware of the case. That was the reason they knew that today or tomorrow he has to be arrested. So चोर की दाढ़ी में तिनका, it is something like that. जब खुद ही आपको पता है कि आपने गलत किया, आपको पता है, अब कोई ये कहे कि पुलिस स्टेशन में कोई बैंक लूटने वाला आदमी कहे मुझे शक था कि पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी, भाई तुम बैंक लूटोगे तो शक की जरूरत नहीं है भैया, पक्का ही है तुम पकड़े जाओगे। तो ये तो कुछ मनीष सिसोदिया इज वन ऑफ दोट केसेस की पता ही है, पक्का ही पता है भाई 2% से 12% कमीशन हुई, इसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने कभी कोई क्लैरिटी नहीं दी। नाइदर दे स्पोकन ऑन देयर क्लोज आइड दिनेश अरोड़ा, जिसकी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से फोटो डिलीट की, वो क्यों इनके साथ था और वो सरकारी गवाह बना, कभी उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया जो उसने कोर्ट के आगे कहा। तो इसका बड़ा स्पष्ट है कि इनको तो पता ही था जब गलत काम किया तो उन्हें अरेस्ट होना ही था। जी, Enforcement Directorate, Mr. Sirsa, is also closing in on this case. Very recently questioned Arvind Kejriwal, the Chief Minister's personal assistant as well. How do you see this probe headed now, sir? So why he has been investigated? Because the close eye of Arvind Kejriwal, Vijay Nair, who used to stay in an official bungalow, in a ministerial bungalow, which was allotted to one of the ministers. So it cannot be without the consent of Arvind Kejriwal. And secondly, all those people who met Arvind Kejriwal has met through this personal assistant only. Maybe whatsoever those liquor dons are named, I actually don't remember now, but all of them met through this guy only. So even he has to be questioned, and days are not far away when ED will also book Manish Sisodia in this case. Thank you, Mr. Sirsa, for speaking to us. Whether or not he remained evasive, whether or not he was fully cooperating, all of that we're going to try and find out in the next few minutes. Let me quickly go across to Tetri as well. Tetri, the CBI has reportedly confronted Manish Sisodia with documents, statements of key players and accused. Also, Dinesh Arora, for example, who's turned an approver in the case, which have been recorded over the last 8 months. Very, very sensational what we're witnessing today. But the Aam Aadmi Party all throughout, remember, has been crying political vendetta. Well, yes, most of the Aam Aadmi Party workers, along with the big faces of Aam Aadmi Party, are detained over here at the police station of Fatehpur Beri, where we are standing as of now. And let me read out the names of those who are presently right now standing here. If you could show the visuals from here, that you can see there are these workers of Aam Aadmi Party, and Sanjay Singh is also where here we saw him that protesting in front of the CBI headquarters while there was questioning going on with Manish Sisodia. Also remember that Gopal Rai is also here, who is also a minister in Delhi government. Apart from that, 3 to 4 MLAs, Rohit Kumar, Dinesh Mohania, Kuldeep Singh, Sarita Singh, who is an ex-MLA from Rohtash Nagar, are all here. Few female detainees were left a while back, but remember that Sanjay Singh is still inside, and probably he will leave in half an hour from this police station, because he was also detained, keeping in mind that section 144 was imposed at the CBI headquarters while Manish Sisodia was called for questioning. Okay, I'll come back to you, Tetri. We have Alka Lambaji joining us on the phone line. Ms. Lamba, how do you see this arrest? Manish Sisodia arrested after 8 hours of questioning by the CBI. देखिए, ये तो होना ही था, है ना? और इसे कब तक ये लोग रोक कर रख सकते थे?
नतेंद्र जैन ऑलरेडी स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के 8-9 महीने होने वाले हैं, तिहाड़ जेल के अंदर है। इतने ईमानदार है, कट्टर, कि केजरीवाल जी उन्हें जेल से बाहर नहीं ला पा रहे। दूसरी, लेकिन आज सीबीआई को पता होना चाहिए, वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर रहे हैं ना, पर ये सिर्फ दिल्ली के शिक्षा मंत्री नहीं है, मनीष सिसोदिया इस देश के होने वाले शिक्षा मंत्री हैं, और इसी बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी डर रही है। आपका यह कहना है कि सीबीआई और ईडी पर सरकार का दबाव था, इस वजह से यह कदम उठाया जा रहा है। मुझे यह बताइए आतिशी, जब आप कह रही थी कि आज गिरफ्तारी होगी, पहले से ही आप मान चुके थे, अब गिरफ्तारी हो गई है, अब आम आदमी पार्टी का अगला स्टैंड क्या है, क्या करेगी? देखिए, हमने तो स्पष्ट तौर पे कहा है, हम सच्चाई की लड़ाई पहले से लड़ते आए हैं, हम सच्चाई की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। हमें गिरफ्तारी से, जेल जाने से डर नहीं लगता। ये तो एक केस है, अब आप देखिएगा रोज रोज नए केस फाइल होंगे, हमारे और नेताओं को भी जेल भेजा जाएगा, लेकिन फिर भी हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहे। कितनी लंबी लड़ाई होगी ये, क्या लगता है? देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी का काल नहीं आ जाता तब तक तो ये लड़ाई चलती रहेगी। और सीबीआई ईडी पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं उसका क्या, क्योंकि ये हर बार होता है। पर देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि सीबीआई और ईडी को मिसयूज किया जाता है, हर तरह से मिसयूज किया जाता है। आप बताइए, इतनी बड़ी घोटाले की बात अडानी जी पर आई, क्या अडानी पर कोई भी जांच हुई? नहीं हुई। क्या सीबीआई ने कोई केस रजिस्टर किया? नहीं किया। लेकिन सीबीआई और ईडी 500 अफसर मनीष सिसोदिया के पीछे 1 साल तक लगा देती हैं, चार्जशीट में उनका नाम नहीं डाल पाती हैं, लेकिन फिर भी उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। देखिए, ये तो एक राजनीतिक केस है, पूरा देश देख रहा है। आरपी सिंह जी जुड़े हुए हमारे साथ। आरपी सिंह जी, So that was Atishi Marlena of the Aam Aadmi Party. Ms. Lamba also continues to stay on with us. Ms. Alka Lamba, if you heard what Atishi had to say, she's saying, we told you so. We told you that Manish Sisodia will be arrested, and that's what's happened. And it's happened because once again, BJP has misused agencies like the CBI and the Enforcement Directorate like they have in the past, is what is being alleged. ये दोनों बातें अलग हैं। आतिशी का बयान क्या था कि वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए भाजपा बौखला रही है। देश के शिक्षा नहीं, शराब मंत्री कहिए। बात शिक्षा की तो हो ही नहीं रही। घोटाला शिक्षा में नहीं हुआ, शराब नीति में हुआ है। और इतनी ईमानदार इनकी मुनाफे वाली शराब नीति थी कि सीबीआई की जैसे ही जांच का आदेश आया, डर के मारे अपनी शराब नीति वापस ले ली। और अब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी नाम चार्जशीट में आ चुका है। अभी आप धीरे धीरे देखिएगा, इनके कट्टर ईमानदार चेहरे हट के कट्टर बेईमान चेहरे आएंगे। बात शराब नीति की हो रही है, बात शिक्षा नीति पर। ये वही आतिशी है ना, शिक्षा मंत्री की तारीफ कर रही है, जो कह रहे थे नोट पर भगवान की तस्वीर लगा दीजिए। देखिए, अर्थव्यवस्था जो है, रुपया जो है, किस तरह से उठता है। हंसे थे लोग, मजाक उड़ाया था। आज ये उसकी बात नहीं करती कि तस्वीर बदल दीजिए नोट पर, भगवान जी की, गणेश जी की लगा दीजिए, है ना। अनपढ़ गवार लोग भी ऐसी बातें नहीं करते। जो शिक्षा की दुहाई ये देश भर में दे रहे हैं, उस शिक्षा का बंटा बैठ चुका है। अध्यापकों की तनख्वाहें नहीं है। 17,000 टीचर आज भी गेस्ट टीचर है, परमानेंट नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। कौन सा, सिर्फ करोड़ों रुपए के खोखले विज्ञापनों पर दिल्ली की सरकार चली और पंजाब इनको मिला, और पंजाब में आज हिंसा हो रही है। इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पकड़े गए, जेल गए। इनके विधायक अभी पकड़े गए हैं 4-5 लाख की रिश्वत लेते हुए, वो जेल गए, है ना। सत्येंद्र जैन जेल से निकाला नहीं जा रहा है इनसे, है ना। मनीष सिसोदिया जी धरे गए हैं। अब बारी अरविंद केजरीवाल की है ना। अडानी की बात बिल्कुल कर रही थी आतिशी, उनको बोलिए रामलीला मैदान खाली है, क्यों नहीं जाती आप, क्यों नहीं अन्ना जी को लेकर एक सवाल जो कांग्रेस भाजपा अक्सर पूछते हैं अलका जी, कि इलीगल वेवर की बात की जाए, टेंडर की बात की जाए, किकबैक्स की बात की जाए, जो भी सवाल उठाए हैं पब्लिक डोमेन में, उनका कोई जवाब नहीं आया है आम आदमी पार्टी की ओर से। सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा ही बोला है हमेशा। हाँ, यही तो बच रहे हैं ना। आतिशी ने शराब नीति पर एक भी लाइन बोली नहीं। शराब नीति को किसके पीछे, शिक्षा नीति के पीछे छुपाना चाह रही है। उन्हें बोलो शराब नीति की बात है। आपने लाइसेंसिंग फीस जो जब्त करनी थी, आपने वो माफ कर दी। आपने 100 करोड़ का तेलंगाना की सरकार और उनके जो नेता हैं उनके साथ मिलकर आपने, तभी तो दिल्ली छोड़ दो, तेलंगाना पहुंचे गठबंधन करने के लिए। आप समझ रहे हैं, है ना। ये ठगबंधन लंबा चलने वाला नहीं है। बेनकाब होंगे, 8 घंटे की पूछताछ कम नहीं होती और धरे गए हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के साथ ईडी ने 50 घंटे की राहुल गांधी जी के साथ पूछताछ की थी, कुछ नहीं मिला।